Hello student, I welcome you to today's session where we'll begin with your new topic, that is atmospheric pressure. Okay, so before that you might have heard about atmosphere. What is atmosphere? All the gases which is present within the what you can say above your surface or above the earth surface can be classified as atmosphere. Okay, so our atmosphere may consist of different gases like nitrogen, oxygens. It may also contains water vapor, it may also contain carbon dioxide. Okay, different gases they may contain. Okay, it may contain the atmosphere of ours. So if I'll compare the atmosphere which is there, which is nothing but a blanket above our head. Okay, which may comprise of different layer like stratosphere, like troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere. Okay, and your ozone layer is present in stratosphere. Okay, the thick blanket of ozone covering the earth, which protects the earth from external UV radiations, okay, which is entering the atmospheric earth through atmosphere. Okay, so before that you might have heard ki we are living on earth. Okay, so what makes us to live on earth? Okay, what are the things that makes us to live on earth? What are the things which is there which makes the earth habitable? Okay, after numerous thoughts you can say that one aspect is the water. That means कि if water is present on earth, that makes the things habitable for us, because without water we cannot survive for about 2-3 days. ठीक है, हम water के बिना survive नहीं कर सकते हैं. And there is one more thing which is atmosphere. Without atmosphere we cannot survive, because we are taking oxygen from the atmosphere, and this oxygen through our lungs goes into your through different capillary actions and arteries. Blood carries the oxygenated blood to your different organs as well as to the cells. Okay, where the oxygenation process happens, where the complex structures being broken into a simpler one, and you may get energy out of it within the cell. And within the cell also numerous other processes are happening, where the ATP being converted, like adenosine triphosphate is being converted, through which you can gain energy and you can do something. Okay, so oxygen is very much important, which is there in our एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की हमें बहुत ज़रूरी है. तो दिस इज वन ऑफ द साइन विच इज देयर ऑन अर्थ दैट मेक्स द थिंग्स हैबिटेबल for us. ठीक है, that makes earth habitable to us. Okay, so these are some of the things that you might have thought कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, अर्थ पे एक तो वाटर हो गया. ठीक है, लैंड तो है ही. ठीक है, we cannot survive on water. ठीक है, वाटर के अंदर जाके तो हम रह नहीं सकते, because we don't have gills. ठीक है, that takes up oxygen from the water. ठीक है, so we don't have that facilities. ठीक है, so we make use of gases which is present in our environment. Okay, and this more the oxygen and more would be our the functioning of the organism becomes better. So you might have heard अबाउट डायनासोर. ठीक है, डायनासोर के ज़माने में क्या होता था भाई, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन था. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ज़्यादा होता था, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा था, तो दैट्स वाई द डायनासोर्स बिकम्स बिगर एंड बिगर. ठीक है, वंस और क्या चीज़ें हुई, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द हाउ डायनासोर डिसअपियर ऑन अर्थ. ठीक है, मीटियोर केम एंड हिट द अर्थ. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. ठीक है, बिफोर, बट the oxygen as well as the atmosphere which is present within the earth, which is nothing but a blanket which is present on the surface of earth, that makes the thing habitable for living organism on earth. ठीक है, सो उसकी वजह से ही, एटमॉस्फेयर की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल है लिव ऑन अर्थ. ठीक है, सो ये एक एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए. सो कि हम क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इन सब चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आइडिया लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग क्लिक करेगा. ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो ये सारी. सो नोइंग दीज थिंग्स वी कैन इजीली फाइंड आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, सो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आसानी से, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में इजीली आप समझ पाएंगे. एज यू कैन सी दिस इज ब्यूटीफुल अर्थ. ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है देखो, वेयर इंडिया इज ऑल्सो
You can easily see India on this particular map. Okay, so if this is India, this is the surface of Earth, okay, and this is land, and as you can see ये जितने भी डॉट डॉट्स हैं, these are nothing but atmospheric gases. ठीक है, एटमॉस्फेयर में जितने गैसेस हैं वही प्रेजेंट है. these are all these things. ठीक है, ओके. और ये एटमॉस्फेरिक का गैसेस, दिस द एटमॉस्फेयर इज क्लोज टू अराउंड 300 किलोमीटर. ठीक है, तो एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज नथिंग बट 6400 किलोमीटर, विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, तो ये आपका बहुत छोटा सा है. दैट इज 300 किलोमीटर इज अ वेरी थिन ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ. ओके, which may comprise of this atmospheric gases may comprise to have a 78% of nitrogen and 21% of oxygen, and a lot of other gases are present within our atmosphere. These atmospheric gases constitute atmospheric pressure, which is nothing but weight of all these gaseous molecules which is applied on a sea level, or you can say on leveled ground. ओके, सो जितने भी वेट लग रहा है इन सब का, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ठीक है, द मोर वी कम क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और यू कैन से सी लेवल, द डेंसिटी ऑफ द गैस विल केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. डेंसिटी गैस की, एयर डेंसिटी विल केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑल्टीट्यूड पे, द डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विल केप्ट ऑन डिक्रीजिंग, और डिक्रीज होता चला जाता है. ठीक है, और अगर पर स्क्वायर मीटर पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको. ये एक छोटा सा 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया ले लें. ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो वो कितना वेट अपना इस पे अप्लाई कर रहे होंगे, दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज 1 atm इज नथिंग बट 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो इसका मतलब इतना वेट लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, इतना वेट गैशियस मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे होंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे. ठीक है, एट द सी लेवल और एट द लैंड. तो लैंड पे इतना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पे, और सी पे भी सेम इतना ही फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, तो नियरर टू द लैंड, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहता है. ठीक है, और वैसे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल केप्ट ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अप इनटू द माउंटेन्स. ठीक है, विल इफ द altitude will kept on increasing, or the density of gas will kept on decreasing. Also the atmospheric pressure will kept on decreasing. तो atmospheric pressure भी डिक्रीज करेगा. सपोज करें एक माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर आपका जो एटमॉस्फेयर, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल. तो इन सब का जो गैस मॉलिक्यूल्स का वेट लग रहा होगा, दैट इज लेस एज कंपेयर टू द गैस मॉलिक्यूल्स विच इज देयर अबव अवर हेड एट सी लेवल और एट लैंड लेवल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट यू नीड टू लर्न. ओके, एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द डेफिनेशन. डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो क्या होता है. इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द वेट ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. ठीक है, दिस इज क्लियर. and 1 atmosphere is nothing but 1.013 into 10⁵ Pascal, which is nothing but 1.013 into 10⁵ Newton per meter square. तो हर एक मीटर स्क्वायर एरिया पे हम पे भी लग रहा है जो फोर्स, इट इज नियरली हर एक मीटर स्क्वायर एरिया पे हमारे फोर्स इतना ही लग रहा है. ठीक है, तो किसी भी बॉडी की बात करें विच इज लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसको हर एक जगह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा बताया था. गैसेस में, लिक्विड में भी सेम फंडा यूज होता है. ठीक है, वेयर द प्रेशर इज देयर फ्रॉम एवरीवेयर. ठीक है, सो दिस प्रेशर, दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो देयर फ्रॉम एवरीवेयर. सो व्हाट इफ कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता, वी कैन नॉट फील इट, because our blood pressure, the internal pressure is slightly more than the atmospheric pressure. ठीक है, तो हमें उतना प्रेशर यूज टू हो गए हैं हम. ठीक है, यहाँ पे तो इसलिए हमें ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अवर ब्लड प्रेशर, ठीक है, इज समवट नियरली स्लाइटली ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
Okay, and if we'll move on to the altitude, ठीक है, if we'll move on to the mountains, what will happens, the external atmospheric pressure decreases, so because of which the internal pressure is already higher as compared to the external pressure which is there on the mountains, so that's why the bleeding may occur at mountain, ठीक है, so you might bleed from nose if you'll go to the mountain. Okay, and space, that's why the space travelers, ठीक है, the astronauts make use of they wear specialized astronomical suit, so that because external in the spaces there is no pressure, ठीक है, so the body fluid may come out from your body, so that's why they have to wear the specialized suit. Okay, और स्पेशलाइज सूट आपको इसलिए भी ज़रूरी है जब इफ़ यू डाइव इनटू द सी, ठीक है, जैसे ही हम नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करता चला जाएगा, तो इसलिए स्पेशलाइज सूट की भी ज़रूरत होती है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. थोड़ा सा हम और मूव ऑन कर लेते हैं. एक्सपेरिमेंटेशन से हम इजीली पता कर लेंगे. देखो एक्सपेरिमेंट में आप क्या करोगे, ये आप खुद से भी करके देख सकते हो. सपोज करो एक टिन कैन लेते हैं हम, टिन का कैन लिया, ऊपर में आपने ये इसका स्टॉपर है, दिस इज द ओपन, और यू कैन से इसको आपने ऊपर से इसका लिड लगा दिया है, ठीक है, तो द गैसेस मॉलिक्यूल कैन नॉट कम आउट. अभी जब इसको ओपन कर देंगे एंड देन इसमें आप वाटर फिल कर दो, ठीक है, दिस इज वाटर फिलअप किया, बाहर से तो एटमॉस्फेयर लग ही रहा है, ठीक है, और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे, अब ये वाटर वेपर जो प्रेजेंट होगा, स्टीम बनेगा, तो स्टीम प्रेशर अभी भी देखो कि अब ये टिन कैन क्या है, अभी अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर चुका है, ठीक है, जैसे पहले था अभी भी है. तो इसका मतलब जितना बाहर से प्रेशर लग रहा है इतना अंदर से प्रेशर लग रहा है, दोनों बराबर है. इस पर्टिकुलर केस में भी स्टीम, इसमें से जैसे ही आप वो करेंगे, क्या नाम है, इसको गर्म करेंगे थ्रू बर्नर, ठीक है, और वाटर फिलअप किया है, तो अंदर का जो गैस मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अंदर का जो एयर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल जाएगा, बट द स्पेस विल बी फिल्ड अप बाय स्टीम, वाटर वेपर पे फिल्ड अप हो जाएगा अंदर का जितने गैस मॉलिक्यूल्स है. नाउ जब ये पूरा गैस मॉलिक्यूल से फिल्ड अप है, अभी भी ये टिन आपका शेप डिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल स्टीम प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है 1 atm, ठीक है. सो अब क्या होगा, एयर प्रेशर इज एंड इंटरनल, दैट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम. अब क्या करो, इसका आप लिड आप जल्दी से लगा दो, ठीक है, लिड लगाने के बाद इस पे कोल्ड वाटर डाल दीजिए, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, अंदर का जो ये स्टीम है इट विल कंडेंस, ये वाटर बन जाएगा, क्योंकि सडनली वो कूल हो जाएगा और वो वाटर बन जाएगा, तो अब अंदर में वैक्यूम टाइप का क्रिएट हो जाएगा. सो दैट मीन्स कि अंदर का इंटरनल प्रेशर कम हो गया, क्योंकि ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स बीइंग कंडेंस्ड. Now there is less water molecule or gas molecules which is there inside the tin lid, ठीक है, और टिन कैन. सो बिकॉज ऑफ विच पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी ज्यादा था, अब इसमें गैस मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, सो द टिन कैन कोलैप्स, ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल थ्रू विच यू कैन इजीली, दीज आर द एक्सपेरिमेंट थ्रू विच यू कैन इजीली डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज समथिंग देयर आउटसाइड, ठीक है, दैट मेक्स द टिन कैन कोलैप्स, ठीक है, and that is called atmospheric pressure. Okay, so now we'll see some of the different application or the consequences. थोड़ा सा देख लेते हैं हम consequences क्या क्या हैं और application क्या क्या हैं. देखो, while sucking sucking a drink, this is K, sucking a drink with straw, we are able to suck drink, ठीक है, ड्रिंक हम पी सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉ. व्हाट हैपन्स, इसमें क्या प्रिंसिपल यूज होता है, लेट मी जस्ट शो यू. देखो होता क्या है, बाहर से एटमॉस्फेयर ऑलरेडी लग रहा होता है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रॉ, और आप क्या करो, ठीक है, जैसे आप सक्शन करेंगे इसमें से एयर मॉलिक्यूल्स आप सक करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, बिकॉज एयर मॉलिक्यूल इज नॉट देयर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद इन द स्ट्रॉ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड वाज इक्वल, ठीक है. जैसे आप एयर सक करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड एयर मॉलिक्यूल इज नॉट देयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर का प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. जैसे ही डिक्रीज करेगा, दिस एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर, तो इट विल व्हाट विल हैपन, इट विल पुश द लिक्विड इनसाइड. तो अब ये क्या होगा, इजीली लिक्विड क्या होगा, स्ट्रॉ के अंदर इजीली सक हो जाएगा एंड यू कैन इजीली ड्रिंक द लिक्विड. ओके, सेम इज द केस ऑफ फिलिंग अ सिरिंज विद लिक्विड, ठीक है, लिक्विड
में क्या होता है, देखो सिरिंज, पहले तो आपका सिरिंज कुछ इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस सिरिंज, और यहाँ पे जो इसका पिस्टन है यहाँ पे होता है, और ये इसका प्लंगर होता है, दिस इज प्लंगर, ठीक है, ये पिस्टन होता है, और ये एंड देन कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, दिस इज अ सिरिंज। तो व्हेन व्हाट विल हैपन, तो इस सिरिंज के प्लंगर को हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो होता क्या है, ये मेडिसिन और एनी पर्टिकुलर लिक्विड आउटसाइड द लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हैपनिंग, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज देयर, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे ही हम प्लंगर को पीछे खींचेंगे, अंदर के जो यहाँ पे जो सक्शन की वजह से यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स जैसे एयर मॉलिक्यूल्स इज नॉट देयर हेयर, तो इनसाइड प्रेशर जैसे ही आप ऊपर खींचोगे, अंदर का इनसाइड प्रेशर कम है, तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे वैक्यूम टाइप का क्रिएट हुआ, तो वैक्यूम में प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होगा, ठीक है। तो वैक्यूम में प्रेशर जीरो होता है, बट यहाँ पे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स का थोड़ा थोड़ा होंगे, तो दैट्स वाई थोड़ा सा प्रेशर होगा, वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल एयर प्रेशर इज मोर, तो जैसे ही एक्सटर्नल एयर प्रेशर की वजह से ये इसको पुश करेगा लिक्विड को, तो लिक्विड विल बी फिल्ड इनसाइड, जैसे हम पीछे खींचते जाएंगे लिक्विड फिल कम इनटू द सिरिंज, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। और आपने देखा होगा जब आपको जब ब्लड कलेक्शन के लिए भी आप देना होता है, तो आप जब वो आप पिक करता है, ठीक है, सिरिंज आपको, तो एकदम से वाटर लिक्विड आता है जल्दी से, ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्लड प्रेशर, ठीक है, विच इज स्लाइटली मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बट फिर भी उसको सिरिंज को, ठीक है, प्लंगर को पीछे खींचना पड़ेगा, सो दैट द ब्लड में कम आउट फ्रॉम द आर्टरीज। Okay, so now let us move on to some more examples. Filling a ink with the fountain pen is also an example of it. अब सबसे आसान तरीका है विद डायग्राम आपको समझना, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, फाउंटेन पेन पुराने ज़माने में कुछ हम इस टाइप के यूज़ किया करते थे, ठीक है, आई ऑल्सो हैव यूज्ड इट, ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये बहुत पहले ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, अभी भी कोई कोई यूज़ करता है, ठीक है। तो कुछ इट वाज लाइक दिस, ठीक है, कुछ बीच में ऐसे होता था, ठीक है, दिस वाज ऑल फाउंटेन पेन, और हम बहुत चाव से लिया करते थे फाउंटेन पेन की, और इंक भी लिया करते थे, ठीक है, इंक ख़त्म हो जाता था तो इंक पॉट भी लेके आते थे, ठीक है, बट नाउ डेज ये चीज़ यूज़ नहीं होता है, ठीक है। फॉर कैलीग्राफी और थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में लिखने के लिए यूज़ कर लिया जाता है फाउंटेन पेन्स, सो अदरवाइज नाउ डेज इट इज़ नॉट यूज्ड। ओके, सो फाउंटेन पेन में भी यही होता है। देखो, इसका एक रबर ट्यूब होता है, जो पीछे में अगर इसको ओपन करोगे तो उसके अंदर एक रबर ट्यूब मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर इंक खत्म हो जाता है तो व्हाट विल हैपन, रबर ट्यूब में आप प्रेस करोगे उसको, ठीक है, तो प्रेस करने से जितने भी अंदर का जो एयर मॉलिक्यूल्स है इट विल कम आउट, ठीक है। और ये ऑलरेडी इंक पॉट के अंदर है, इंक पॉट इट इज़ ओपन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सर्टिंग, ठीक है, एटमॉस्फेयर हमेशा एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर। तो जैसे ही इसको रबर को आप दबाएंगे तो द एयर मॉलिक्यूल्स विल कम आउट फ्रॉम निब से निकल जाएगा एयर, और ये निकल जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। आप क्या करेंगे, एकदम से छोड़ देंगे तो व्हाट विल हैपन, सक्शन विल कम, क्योंकि इंटरनल प्रेशर निब के अंदर का इंटरनल प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो वो एयर क्या करेगा, इसको पुश करेगा एंड फ्रॉम लिक्विड विल बी फ्लोन अप, ठीक है, लिक्विड ऊपर फ्लो हो जाएगा। सेम है, द प्रिंसिपल इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। सो नाउ लेट अस आल्सो टेक एन एग्जांपल ऑफ टेकिंग ऑयल फ्रॉम अ सील्ड ऑयल कैन, ठीक है। आप सील्ड ऑयल कैन टाइप का देखा होगा, एक थोड़ा सा बिगर होता है, 10 लीटर का होता है, 10 या 20 लीटर का होता है, ठीक है, सील्ड ऑयल कैन, उसमें आप डिफरेंट एडिबल ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। सो तो उसमें कैन में होता क्या है, ऊपर से पूरा इट इज सील पैक्ड फ्रॉम एवरीवेयर, और ऊपर से ही आप होल्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट से आप होल्ड करते हैं ताकि इसमें से निकाल सके ऑयल। इफ़ यू आर मेकिंग ओनली वन होल ओवर हेयर, यू वोंट बी एबल टू टेक आउट ऑयल फ्रॉम इट। Why? Because there is no because it is completely full packed, the air cannot come go inside, ठीक है। Also the atmospheric pressure outside is more, ठीक है, बाहर का atmospheric pressure ज़्यादा होता है, so it cannot come out,
सो व्हाट विल हैपन कि थोड़ा सा आपको टिल्ट करना पड़ेगा. टिल्टिंग विल हैपन, व्हाट विल हैपन, इसका लेवल और इसका लेवल में डिफरेंस आ जाता है नाउ. तो ये जो ये आपका जो ऑयल है इतना लेवल है, इसमें ऑयल का प्रेशर भी इसमें डेवलप हो जाता है. तो और यहाँ पे आपको दूसरी जगह होल्ड करोगे तो टिल्ट करेंगे और यहाँ पे एक होल्ड करना पड़ेगा ताकि द एटमॉस्फेयर प्रेशर विल बी एक्सर्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर होल प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड द ऑयल का प्रेशर सारा लगेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको अंदर की तरफ फिलअप करेगा. तो लिक्विड का प्रेशर एक्स्ट्रा हो गया, सो बिकॉज ऑफ विच द लिक्विड विल कम आउट. ठीक है, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग सकता है, इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर भी लगेगा. तो उसको थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा आपको सो दैट द लिक्विड में कम आउट, द ऑयल में कम आउट. Okay, so you need to have two openings and one opening at and the two openings at opposite end. ऐसा नहीं कि एक ही जगह आप ओपनिंग दोनों होल्ड कर दो. ठीक है, तो सेम लेवल का डिफरेंस ही नहीं आएगा. ठीक है, सो द ऑयल मे नॉट कम आउट. ठीक है, इजीली. So now you can also think about one more example, that is action of chiffon system. Action of chiffon system consists of two tanks or you can say two tray. ठीक है, filled up with liquid. उसमें क्या होता है, एक आप स्ट्रॉ लेंगे, वी शेप का स्ट्रॉ होता है. ठीक है, और इसमें भी लिक्विड भरा है. ठीक है, ये बिगर टैंक है, इसमें लिक्विड जो भी भरा हुआ था. ठीक है, इसमें से लिक्विड ट्रांसफर हो जाता है इस नीचे वाले टैंक में. दिस इज टैंक ए, टैंक बी. तो व्हाट विल हैपन, हाउ इट कैन बी. देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस है क्योंकि यहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दीज आर ओपन, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से तो लग रहा होगा. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है. ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट, लेट इट बी स्मॉल बी, दिस इज पॉइंट, लेट इट बी स्मॉल ए. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस अब होगा तभी क्या होगा, लिक्विड ऊपर से नीचे फ्लो होगा. ऑल्दो देयर इज प्रेशर डिफरेंस, बट इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा सक, दिस इज द ट्यूब, यहाँ से एयर जो एक्स्ट्रा है इसके अंदर उसको सक कर लेंगे आप, ताकि एक्स्ट्रा एयर का प्रेशर ना हो. इस पर्टिकुलर पॉइंट से, बी पॉइंट से एकदम सक करेंगे और उसको इस वाटर वाले टैंकर बी में उसको इमर्स कर देंगे. इमर्शन से क्या होगा, जैसे आप सक करेंगे, ठीक है, एयर यहाँ पे अंदर कम होगा, तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ऑयल, दिस लिक्विड विल गो इनटू लाइक दिस. जैसे आप लिक्विड जाना स्टार्ट करेगा तो बिकॉज ऑफ विच अब प्रेशर डिफरेंस की वजह से अब कंटिन्यूसली लिक्विड इसमें जाता रहेगा एंड इसका लिक्विड यू कैन इजीली बी फिल्ड अप इन टैंक बी. ठीक है, द लिक्विड ऑफ टैंक ए विल फिल्ड अप इन टैंक बी. सो दिस इज अ शिफॉन सिस्टम थ्रू विच water can may come from upper top tank to lower tank. Okay, because of the pressure difference and because of the atmospheric pressure. ठीक है, so now let us move on to some of the pressure measuring device, atmospheric pressure measuring device, like simple barometer, 14 barometer, aneroid barometer. ठीक है, so we'll study about the simple barometer first. Okay, then we'll move on to Fortran and aneroid barometer later on. ठीक है, Fortran and barometer थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट इस पर्टिकुलर क्लास में सिंपल बैरोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो सिंपल बैरोमीटर, दीज आर नथिंग बट द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस. ठीक है, दीज आर ऑल दीज थ्री थिंग्स आर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस. दिस इज सिंपल बैरोमीटर. ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है. Fortran इज ऑल्सो मॉडिफाइड सिंपल बैरोमीटर कहते हैं इसको. ठीक है, एनेरॉइड बैरोमीटर में थोड़ा सा रीडिंग इजीली आसान होता है लेना. ठीक है, so we'll study about all these things one by one, but in today's session I'll try to cover simple barometer. Okay, so let us move on to what is simple barometer. We already know barometer, we know that 1 atm is equivalent to 1.013 into 10 raised to power 5 pascal. ठीक है, 1 bar is equal to 10 raised to power 5 pascal. ठीक है, सो बार इज नथिंग बट इज ऑल्सो अ यूनिट फॉर प्रेशर. ठीक है, प्रेशर का ही यूनिट है ये. ओके, सो एज यू कैन सी अ सिंपल बैरोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड Torricelli first designed a simple barometer using mercury as a barometric liquid. इसमें जो लिक्विड Torricelli ने फर्स्ट टाइम डिजाइन किया था एक सिंपल बैरोमीटर, उसमें उसने मर्करी यूज किया था, मर्करी का यूज किया था. ठीक है, विच हु सिंबल इज Hg. ठीक है,
बैरोमेट्रिक लिक्विड यूज किया है उसने। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लेते हैं। बैरोमेट्रिक सिंपल बैरोमीटर की क्या है, देखो एक सिंपल बैरोमीटर कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। सिंपल बैरोमीटर में एक ये ट्रफ होता है, दिस इज अ ट्रे विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रफ, विच इज फिल्ड विद मर्करी। इसमें मर्करी पूरा फिल किया जाता है, ठीक है, पूरा मर्करी इसमें डाल दें, ठीक है। एक आपने ट्यूब लिया है, ग्लास ट्यूब लिया है, एक ग्लास ट्यूब और एक ये कंटेनर इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसमें आपने मर्करी फिल कर दिया है, ठीक है, कुछ लेवल तक मर्करी इसमें फिल किया आपने, ओके। अब क्या करो, जो आपने एक ग्लास ट्यूब लिया है, ग्लास ट्यूब का लेंथ, क्योंकि इफ यू आर यूजिंग मर्करी तो ग्लास ट्यूब का लेंथ क्लोज टू अ स्ट्रॉन्ग ग्लास ट्यूब लेना है, क्लोज टू 1 मीटर का होना चाहिए ये, ठीक है। तो 1 मीटर का यूज करेंगे। इसमें क्या करोगे आप, ऊपर से मर्करी फिल कर दो पूरा, इसमें पूरा मर्करी फिल कर देंगे हम, ठीक है। मर्करी फिल करने पे और ऊपर से जैसे ही आप मर्करी पूरा फिलअप कर दो अपने हैंड से या थंब से, ठीक है, इस मर्करी को बाहर निकलने नहीं देना है और इसका ये इस टाइप से सेटअप करना है ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स वगैरह हैं वो सारे निकल जाए। सो देयर मे नॉट हैव अ एयर बबल इन, दे शुड नॉट हैव एन एयर बबल इन दिस ग्लास ट्यूब, okay. Make sure and shake it slowly or so that the mercury the air bubble may come out, and then eventually you have to put this is its open end and this is its close end of this tube, ठीक है। सो क्या करेंगे, आपको जो ओपन एंड है सीधा डायरेक्ट आप क्या करोगे, ओपन एंड को पोर कर दोगे इस पर्टिकुलर ट्रफ में। दिस इंस्ट्रूमेंट दिस कंटेनर इज कॉल्ड एज ट्रफ, इसको ट्रफ कहते हैं, ठीक है। इसके उल्टा करके, ठीक है, एकदम से अंदर डाल देंगे और अपना हाथ यहाँ से रिमूव कर लो, ठीक है। रिमूविंग योर हैंड while it is fully immersed, जो पूरा जब अंदर चला जाता है, रिमूव योर हैंड। सो व्हाट विल हैपन, ठीक है, एटमॉस्फेयर ऊपर से इस पे प्रेशर लगा रहा है, देखो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन दिस ट्रफ सरफेस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सो थोड़ा सा ये फॉल कर जाएगा, ठीक है। सो लेवल ऑफ वाटर मर्करी थोड़ा सा फॉल करेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा क्योंकि देर इज नो एयर, अंदर में कोई एयर नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या 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 क्रिएट होगा, वैक्यूम, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोरिसेली वैक्यूम, इसको हम ऑल्सो कहेंगे टोरिसेली वैक्यूम, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोरिसेली वैक्यूम विच इज क्रिएटेड ओवर इट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो, ठीक है। अगर आप वैक्यूम नहीं क्रिएट होगा, अगर एयर आ गया तो एयर भी अपना कुछ यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लिक्विड प्रेशर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे इसको अंदर आपने पुट किया, बाहर से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। सो हल्का सा ये फॉल करेगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर लिक्विड जाएगा, हल्का सा, पहले ये सपोज करो इसका लेवल यहाँ था, ठीक है, और ये अंदर था, ठीक है, तो हल्का सा ही ऊपर चला जाएगा ताकि ये इसको ऑक्यूपाई कर सके, ठीक है। तो लिक्विड में फॉल, अब नाउ इक्विलिब्रियम में आ गया, नाउ इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, नाउ इट इज नॉट फॉलिंग, दिस लिक्विड इज नॉट फॉलिंग, ठीक है, एंड दिस इज मर्करी एंड दिस मर्करी इज नॉट फॉलिंग। और हमने क्या किया, ये कितना और यहाँ से सरफेस से कितना अबव है ये लिक्विड इसमें फिल्ड अप है, वो हमने नोट डाउन कर लिया, कितने मीटर है हमें पता चला, इट इज क्लोज टू 760 mm, 760 mm के बराबर होता है, और 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम Hg, इसी को कहते हैं 760 mm ऑफ Hg, जो हमने शायद पढ़ा था पहले, ठीक है। हमने यूनिट्स में पढ़ा था ये चीज कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg मर्करी कॉलम, ओके। सो अब जैसे ही बाहर से में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है एट पर्टिकुलर सी पॉइंट्स, ये जो सरफेस पे सी पॉइंट्स हैं, इस पे जो भी प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और हमें पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के बराबर होता है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इस कंटेनर में है, ए पॉइंट, लेट इट बी दिस ए, ठीक है, पॉइंट ए, ठीक है, विच इज वी ऑल्सो नो दैट द एट सेम लेवल द प्रेशर वुड बी सेम, ठीक है, वो भी हमें पता है। तो ए पे जो प्रेशर है इट इज बिकॉज ऑफ मर्करी कॉलम, जो एयर में, ठीक है, सरफेस से कितना अबव मर्करी कॉलम फिल्ड अप है वो अप्लाई करेगा प्रेशर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ इट, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर है। तो हम कह सकते हैं प्रेशर इन द कॉलम ए बी एंड यू कैन से प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है।
एट द मर्करी लेवल में फॉल करने के बाद 760 mm पे आ गया है। तो आप इजीली पता कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें मर्करी का डेंसिटी पता है विच इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज क्लोज टू 13600 1360, ठीक है, के क्लोज आपका आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेशर एट सी इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1 atm। प्रेशर एट ए इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ द लिक्विड विच इज DGH। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज, पुट करेंगे मर्करी की डेंसिटी 3600, ठीक है। G इज 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 760 mm और 76 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं आप इसको। सो mm को डिवाइड करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। सॉल्विंग दीज थिंग्स यू विल गेट द एक्सप्रेशन 1.013 इंटू 10 raised to power 5 pascal। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन 1 atm। तो थ्रू दिस ट्यूब वी आर एबल टू find out how much atmosphere is applying pressure on this particular surface of liquid, ठीक है। by also finding out how much is the height of this particular mercury column we can easily find out the atmospheric pressure also, ठीक है। तो जितना ज्यादा हाइट होगा, ठीक है, तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बढ़ गया होगा। तो एटमॉस्फेरिक, ये अगर हाइट अगर कम हो गया है तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है। तो इसको अगर आप माउंटेन पे ले जाओ, ये सरफेस सपोज करो ये सी लेवल है, अगर माउंटेन पे ले जाओ तो ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माउंटेन पे बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो इसका ये जो the height which is balancing the atmospheric pressure will decrease, ठीक है। क्योंकि this pressure at this particular point A is dependent on height of mercury column, उस पर डिपेंड करता है। ये कम है तो ये भी कम है, प्रेशर एट ए और सी पे दोनों बराबर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो गया होगा, ठीक है। सो इफ द प्रेशर इंक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, द लेवल में इंक्रीज, ठीक है। इफ द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, द लेवल में फॉल, ठीक है। और बहुत आसान है, आसानी से समझ जाओगे, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। और ये एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं आप इजीली, आप 1 atm की वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बैरोमीटर, ओके। सो नाउ विल स्टडी कि अब होता क्या है कंस्ट्रक्शन में। आप यही बताएंगे कि इसको ग्लास ट्यूब जो लिया है आपने, ग्लास ट्यूब भी 1 मीटर का लिया है, वाई? क्योंकि थोड़ा सा ये दिस इज 76 सेंटीमीटर, तो वो राइज ही करेगा, ठीक है। तो राइज करेगा 76 सेंटीमीटर, तो उससे बड़ा ही आपको ग्लास ट्यूब लेना पड़ेगा ताकि वो क्या कहते हैं, ऊपर पूरा कंटेनर पे फिलअप ना हो जाए। एंड वैक्यूम इज क्रिएटेड ओवर हेयर। वैक्यूम क्रिएट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं क्रिएट होगा तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, अगर सपोज करो एयर मॉलिक्यूल्स है, वो खुद का भी प्रेशर इस लिक्विड पे अप्लाई करेंगे, दिस मर्करी कॉलम पे अप्लाई करेंगे, और मर्करी कॉलम एक्चुअल में रीड कम करेगा, तो हाइट कम रीड करेगा। तो आप ये आपको सिर्फ हाइट ही मेजर करना है, तो इजीली आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्यूरेटली आप मेजर नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा कम ही मेजर करोगे, ठीक है। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो भी थोड़े से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट, क्या क्या फैक्टर्स है विच कैन अफेक्ट द हाइट ऑफ दिस मर्करी कॉलम। देयर इज नो इफेक्ट विद द चेंज इन द शेप ऑफ द ट्यूब। अगर ट्यूब का थोड़ा सा शेप भी चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पतली ट्यूब मोटी ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो लेंथ बट उतना लेना है ताकि वो राइज कर सके, जितना राइज करेगा उससे ज़्यादा ही लेना पड़ेगा लेंथ ऑफ द ट्यूब। और द ट्यूब इज टिल्टेड, अगर टिल्ट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो लेवल ये होगा, ठीक है, हल्का सा टिल्ट करने पे भी वो उसका वर्टिकल हाइट, क्योंकि अब ये राइज कर जाएगा, ये थोड़ा सा राइज कर जाएगा, ठीक है, नॉट राइज मतलब ये लेवल अपने आप को सेम ही रखेगा, ठीक है। तो इसका वर्टिकल हाइट भी सेम ही रहेगा 76 सेंटीमीटर और 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, ठीक है। और भी देख लेते हैं चीज। इफ देर इज सम प्रेशर एट वैक्यूम ड्यू टू द वाटर वेपर,
और वाटर, सपोज करो वाटर चला गया इसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स चला गया, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें जाके ऊपर क्या हो गया, वाटर वेपर बना देता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल चला गया और ऊपर जाने, क्योंकि वैक्यूम में जाते ही क्या होता है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है वैक्यूम में, ठीक है। तो अपनी वजह से यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट करेगा, बिकॉज ऑफ विच अब ये खुद से भी अब ये फोर्स अप्लाई करेगा ना, तो एक्चुअल में जो रीडिंग आएगी वो लिक्विड की जो आप हाइट ही मेजर करोगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर सेम होता है, वही मेजर करने के लिए आपको ये हाइट ही चाहिए, वो हाइट ही कम आएगी तो और जो आपका मेजर्ड वैल्यू है वो कम आया ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है उससे कम ही आ गया रीडिंग, ठीक है, तो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, सम प्रेशर एट द वैक्यूम, सो इफ देयर इज सम प्रेशर एट द वैक्यूम ड्यू टू द वाटर वेपर, द रीडिंग में वेरी, ठीक है, तो रीडिंग वेरी कर सकता है, सो दैट्स वाई ये पूरा वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है, और एयर पार्टिकल्स या और एयर भी चला जाएगा तो एयर पार्टिकल भी क्या करेगा उसमें, और खुद का एयर पार्टिकल भी उसमें प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है, सो दैट्स वाई ये सारे एयर जो एयर कॉलम्स भी नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, और ना ही वाटर वेपर भी नहीं होना चाहिए। देखो, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मर्करी। मर्करी हम क्यों यूज करते हैं भाई, ठीक है, हम तो वाटर भी कर सकते थे, अब हम डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे वाटर का, ठीक है। देखो, डेंसिटी ऑफ मर्करी, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज हायर, क्यों, क्योंकि मर्करी का डेंसिटी हायर होता है, विच इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एंड सो द लेस मर्करी हाइट इज नीडेड टू बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कोई दूसरा लिक्विड ले लो आप जिसका डेंसिटी कम है, ठीक है, तो अब वो और ज्यादा राइज करेगा, तो बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा, तो उसका आपको लेंथ ऑफ ट्यूब लेना, बहुत लंबा ट्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट इज ऑलवेज डिसएडवांटेजियस, ठीक है। और एक चीज और है, वेपर प्रेशर ऑफ द मर्करी इज नेग्लिजिबल। जो आपका जस्ट अ मिनट, जो मर्करी अप्लाई करता है प्रेशर, ठीक है, वो वैक्यूम में वो बहुत कम होता है, क्योंकि देखो जब ये ऐसा, इफ इट इज फिल्ड लाइक दिस, मर्करी इज फिल्ड लाइक दिस, ठीक है, इसका जो मिनिस्कस होता है इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स मिनिस्कस होता है, तो थोड़ा सा मर्करी ऐसे शेप होगा, ठीक है, वाटर का शेप, अगर वाटर इफ इट इज राइजिंग इट वुड बी लाइक दिस, कॉन्केव मिनिस्कस होता है वाटर का, और इसका होता है कॉन्वेक्स मिनिस्कस। क्यों, क्योंकि जो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो दैट मीन्स की दैट इज कॉल्ड एज adhesive force. The adhesive force of water and glass molecule is more, so that's why it will, because of the capillary reaction it may rise, तो थोड़ा सा राइज भी कर सकता है वो। और इसका जो होता है कोहेसिव फोर्स होता है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है, कोहेसिव मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, एडहेसिव मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, ठीक है। सो कोहेसिव एडहेसिव फोर्स इसमें ज्यादा होता है, और इसमें एडहेसिव फोर्स मर्करी में कम होता है, तो उसका मिनिस्कस ऐसे होता है, तो ग्लास मॉलिक्यूल्स के साथ वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है ग्लास यूज करने का। और ये वेपर इसमें नहीं बनाता है, ठीक है, ज्यादा वेपर ये वेपर नहीं बनाएगा, खुद का वेपर। वाटर ले लेते तो वाटर यहाँ पे वाटर वेपर बना देता, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पे वाटर वेपर इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे वाटर वेपर बना देता, और वाटर वेपर भी खुद का प्रेशर अप्लाई कर देता वाटर लिक्विड पे, ठीक है। तो मर्करी डज नॉट वेपराइज इजिली, तो वेपर प्रेशर ऑफ मर्करी इज नेग्लिजिबल, मर्करी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास ट्यूब, क्यों, क्योंकि वेरी लेस एडहेसिव फोर्स कम होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है इसमें, मर्करी और मर्करी के बीच में जो फोर्स है वो ज्यादा होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का, एंड इट इज शाइनी ऑल्सो एंड ओपेक, सो इट कैन बी इजिली सीन। तो अब जो ये राइज करेगा ट्यूब के अंदर, ये शाइनी होता है और आसानी से ओपेक होता है, तो इजिली हम पता चल जाएगा कि इट हैज राइजन, ठीक है, और उसका इजीली मेजर कर सकते हो। बट वही वाटर में, वाटर क्या होता है ट्रांसपेरेंट, तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू रीड इट, ओके। एंड ऑल्सो द डेंसिटी, द डिसएडवांटेज ऑफ वाटर क्या है, नॉट यूजिंग द वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज लो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो द अप्रोक्सीमेटली मिनिमम आपको कम से कम 10.4 मीटर तो वो राइज करेगा ही करेगा ऑन वाटर कॉलम इज नीडेड टू बैलेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इतना मिनिमम आपको चाहिए, 10 मीटर का ट्यूब चाहिए मिनिमम, ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो मिनिमम क्योंकि 10.4 मीटर के क्लोज वो राइज करता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, तो आपको 10 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा ही लेना पड़ेगा, ठीक है, ट्यूब, इफ द बैरोमेट्रिक लिक्विड इज वाटर, ठीक है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज ऑल्सो हाई,
वेपर प्रेशर भी है, वेपर प्रेशर बना देगा वैक्यूम में और इसकी वजह से रीडिंग डिफरेंट आ जाएगी। वाटर स्टिक टू द ग्लास ट्यूब ऑल्सो, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सो मोर एडहेसिव फोर्स, इसमें स्टिक टू द ग्लास ट्यूब, तो इसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। एंड वाटर इज ट्रांसपेरेंट सो डिफिकल्ट टू बी सीन, ये भी चीज़ है। ओके, सो एक चीज़ और देख लो आप, जब हम सब कुछ पढ़ लिया है हमने तो इसके डीमेरिट्स भी देख लो। सिंपल बैरोमीटर के क्या क्या डीमेरिट्स है। एक तो ये ओपन होता है, देखो देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर ग्लास ट्यूब, कोई ग्लास ट्यूब का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, ठीक है। सरफेस ऑफ द मर्करी इज इन द ट्रफ इज ओपन, बाहर में ओपन है ट्रफ का, ठीक है। जो ये आप मर्करी कॉलम जिसमें फिल करेंगे ये पूरा ओपन होता है, ठीक है। तो ये पूरा ओपन है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंटामिनेशन में हैपन, सो कोई इम्प्योरिटीज इसमें जा सकती है बाहर से। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एडवांटेजियस एंड इट इज़ नॉट पोर्टेबल, मतलब हर एक जगह आप नहीं ले जा सकते हो क्योंकि थोड़ा बिग सेटअप है, हर एक जगह नहीं ले जा सकते। स्केल इज़ नॉट फिक्स्ड, इसमें स्केलिंग भी करना बहुत डिफिकल्ट है, अंदर से बाहर से स्केल यूज़ करना भी बहुत डिफिकल्ट है। स्केल यूज़ करना भी इसमें डिफिकल्ट है क्योंकि द लेवल ऑफ द में राइज और फॉल, ठीक है। लेवल ऑफ द मर्करी कॉलम में राइज एंड फॉल, थोड़ा सा राइज फॉल कर सकता है, ठीक है। ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट बैरोमीटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर theoretical that you need to learn, but it is somewhat, you can say, the application through which it depends in is because of atmospheric pressure exerts a pressure on any particular liquid and because of which the liquid may rise. Okay, so these are the application on which the barometer may work. ओके, सो एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने सारी चीज़ें पढ़ ली एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये क्वेश्चन, बट फिर भी आप थोड़ा सा ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करें खुद से, ठीक है। अब पॉज करके वीडियो पॉज कर लें एंड खुद से ट्राई करो, ठीक है। सो नाउ लेट अस बिगिन। मर्करी बैरोमीटर रीड 75 सेंटीमीटर, वो एक मर्करी बैरोमीटर आपने लिया है जिसकी रीडिंग आ गई भाई, कितना राइज किया, 75 सेंटीमीटर राइज कर दिया, ठीक है। नाउ 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ट्यूब। अब इसी प्रेशर पे आपने यहाँ से एयर डाल दिया, एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्रेशर 75 सेंटीमीटर वाला ही था क्योंकि ये इतना लिक्विड इसमें फिलअप था एक्स्ट्रा। अब इसमें एयर मॉलिक्यूल्स डाल देंगे जिसका वॉल्यूम दे रखा है ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ द मर्करी फॉल टू अ हाइट ऑफ 65 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, ये एयर मॉलिक्यूल राइज करेगा, फाइनली कुछ सेटअप इस टाइप से होगा, ठीक है। ये पहले इसका मर्करी कॉलम पहले ऐसे था, ठीक है, 75 सेंटीमीटर पे था। अब क्या हो गया, ये 65 सेंटीमीटर पे आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें एयर मॉलिक्यूल्स जो थे इसमें राइज कर गए हैं। इसमें जो आपने इंट्रोड्यूस किया एयर मॉलिक्यूल, इट हैज़ राइजन अप, तो इट हैज़ फॉलन टू 65 सेंटीमीटर नाउ मार्क। अब क्या होगा देखो, तो एक्चुअल में जो ये रीडिंग आ रही है यहाँ से एटमॉस्फेयर तो अभी भी लग रहा है सेम ATM, तो यहाँ की रीडिंग और यहाँ की रीडिंग अभी भी सेम ही होगी, बट जो ये रीडिंग आ रही है इसकी 65 सेंटीमीटर की, वो तो कम है ना। सो कितना कम है, तो वो कितना कम है, 75 माइनस 65 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रीडिंग है वो 65 सेंटीमीटर के वाटर मार्क, 65 सेंटीमीटर ऑफ Hg का भी रीडिंग है, प्लस जो एयर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो एयर प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है वो 10 सेंटीमीटर वाला अप्लाई कर रहा है ना, 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg मर्करी कॉलम का प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली बाहर में अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM को बैलेंस करना है, पहले भी 1 ATM ही था, अब पहले वाला 1 ATM 75 को बैलेंस कर रहा था, ठीक है। अब जो 1 ATM है 65 को बैलेंस कर रहा है, तो बाकी जो 10 सेंटीमीटर ऑफ ऑफ Hg जो प्रेशर है वो किस में अप्लाई हो रहा होगा, किस में होगा, वो एयर प्रेशर होगा। तो वैक्यूम में भी अब एयर की वजह से प्रेशर जो होगा वो 10 mm ऑफ Hg कॉलम, 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम की वजह से हो रहा है, ठीक है। या 100 सेंटीमीटर ऑफ 100 mm ऑफ Hg कह सकते हो, या 10 सेंटीमीटर
के बराबर होगा, ठीक है, Hg कॉलम के बराबर होगा, ठीक है। सो आप इजीली कह सकते हैं, आपको पता क्या करना है, देखो द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबव द मर्करी इज फाउंड टू बी 15 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ जो फाइंड आउट किया है वो 50 सेंटीमीटर आया है, एयर कॉलम का जो लेंथ आया है वो एयर 50 सेंटीमीटर है। और ये ट्यूब का सपोज करो एरिया ए है, कैपिटल ए, क्योंकि ये सर्कुलर ट्यूब है, इसका एरिया क्या है आपका, कैपिटल ए। कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बैरोमीट्रिक ट्यूब, तो इसी का हमने एरिया पता करना है, ठीक है। तो हमें पता है जो एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रेशर है वो 10 mm ऑफ Hg के बराबर है ना, ठीक है, 10 mm ऑफ Hg मर्करी कॉलम के बराबर है वो, ठीक है। तो यू कैन इजीली से दिस 10 mm ऑफ Hg इज अ प्रेशर ऑफ दिस एयर कॉलम, ठीक है, एंड प्रेशर ऑफ दिस पर्टिकुलर एयर कॉलम 10 mm ऑफ Hg। पहले एयर कॉलम कितने mm ऑफ Hg प्रेशर पे था, 75 mm ऑफ Hg प्रेशर पे था, ठीक है। अब कितने mm ऑफ Hg पे है, 65। अब जो है ये प्रेशर जो आ रहा है वो 10 mm ऑफ Hg प्रेशर पे है ये, ठीक है। तो यू कैन इजीली से एक टर्म आपको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT, कोई भी गैस का PV इक्वल टू nRT, ठीक है। T the temperature of the gas, V the volume of the gas, P is the pressure of the gas। ये एक नया टर्म है जो आपको थोड़ा सा नहीं आता, तो आप थोड़ा सा आप सीख लें, क्योंकि आपकी बुक में भी ये नया टर्म गिवन है, PV is equal to nRT। तो अगर टेम्परेचर अगर बाहर का कांस्टेंट रखे तो गैस का प्रेशर बढ़ाने पे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा टर्म। R इज गैस कांस्टेंट, N इज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अभी आप थोड़ा सा यही याद रखें, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इसमें कांस्टेंट ही है, R इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट कर तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर अब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, nRT। ये तो कांस्टेंट टर्म है, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटाने पे प्रेशर बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यू कैन इजीली से PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आप एक्सप्रेशन इजीली आप लिख सकते हैं इसमें। इसका मतलब प्रेशर किसी भी लिक्विड का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम इसमें कितना है ये आपको पता करना है। तो देखो इसमें फिलअप कितना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल ए, और इसका हाइट कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो अभी इसका वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में ये ऑक्यूपाई है, दिस इज द V2। V2 इज नथिंग बट एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट करेंगे तो 15, तो 15 सेंटीमीटर इंटू एरिया, तो दिस शुड बी द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो V2 इजिली आ गया। ये कितने प्रेशर पे है, ये 10 mm ऑफ Hg पे है ना, ठीक है। तो सीधा आप 10 mm ऑफ Hg को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 mm ऑफ Hg कितने के बराबर होता है, 1 mm ऑफ Hg हमें पता है 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 180 m, विच इज इक्वल टू 1.013 into 10 raised to power 5 पैस्कल, ठीक है। तो 1 mm ऑफ Hg मर्करी कॉलम डिवाइडेड बाय 760 कर देंगे तो इजीली 1 mm ऑफ Hg पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 mm ऑफ Hg है, तो डिवाइडेड बाय 760 कर देंगे इंटू 1.013 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पैस्कल। तो इतना प्रेशर इस गैस मॉलिक्यूल का है। अभी उसका इतने प्रेशर पे इसका वॉल्यूम कितना है, V2 वॉल्यूम कितना है 15 इंटू ए, ठीक है। इनिशियली वो वॉल्यूम कितना था इसका 3 सेंटीमीटर क्यूब है ना, ठीक है, 3 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसका इनिशियल प्रेशर कितना था 75 सेंटीमीटर ऑफ mm ऑफ Hg। 75 को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, देखो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं पैस्कल में 75, तो ये हो जाएगा 75 क्योंकि 1 mm ऑफ Hg होता है तो 760 डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 1.013 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पैस्कल, ठीक है। तो ये सारे टर्म तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे आपको, तो इसलिए कुछ नहीं करना है। 75, ठीक है, इंटू 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 15 इंटू ए। तो सॉल्विंग दीज टू यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इजीली आ जाएगा। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता चला है कि एयर मॉलिक्यूल की वजह से भी जो उसमें गया, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स राइज किया, ठीक है, और पूरे जो राइज करते करते वो 15 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। और एरिया उसका है कैपिटल ए, वो आपको इजीली 1.5 सेंटीमीटर का ट्यूब था, एरिया था, ठीक है, उसमें राइज किया। तो राइज करने की वजह से भी उसमें प्रेशर का कुछ चेंज आया,
ठीक है। और वो प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स में प्रेशर कितना आ गया उसका 10 mm ऑफ Hg होगा उसका। क्यों? क्योंकि ये 65 mm ऑफ Hg तो ऑलरेडी लगा दे रहा था लिक्विड, बाकी का जो 10 mm ऑफ Hg वो कौन लगाएगा? वो लगाएगा एयर में जो प्रेशर है वो उसकी वजह से होता है वो, ठीक है। तो एयर प्रेशर 10 mm ऑफ Hg होगा, वो उसका उसमें कन्वर्ट कर लो आप, ठीक है, पैस्कल में। और इनिशियल वॉल्यूम कितना था इसका 3 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइनल इनिशियल प्रेशर कितना था 75 mm ऑफ Hg। तो इतने पे ये राइज किया था, उस टाइम पे प्रेशर ये था, ठीक है। तो ये एक टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो उसी को हम आइसोथर्मल कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये एक्सप्रेशन किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का आप इजीली कह सकते हैं जो आइडियल गैस है, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, बैरोमीटर के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वाई ओनली हम मर्करी यूज़ करते हैं, नॉट वाटर, ठीक है। ऑल दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी लर्नड, ठीक है। आई होप कि आप सारे गो थ्रू करेंगे, खुद से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, एंड एक बार जितने भी पहले के जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसको भी देखेंगे, तो ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, ठीक है। और अपना साइंस का देखने का नज़रिया, ठीक है, साइंटिफिक टर्म टेम्परामेंट से देखने का नज़रिया थोड़ा सा इंक्रीज करो, कि आपके डे टू डे लाइफ में आसपास क्या क्या हैपन कर रहा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं विच इज़ रिलेटेड टू साइंटिफिक, ठीक है, व्हाट आर द फिनोमेना विच इज़ हैपनिंग विद इन द सराउंडिंग्स एंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग, ठीक है, क्यों हो रहा है, ठीक है। उससे बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ें अच्छा लगने लगेगा, बिकॉज ये कोई आप चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, बिकॉज दीज आर द थिंग विच इज़ देयर इन द एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट में ऑलरेडी है ये सब चीज़ जो आप इजीली पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो आप एनवायरनमेंट को ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट और द स्टडी ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड एज फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में आप सराउंडिंग के बारे में ही पढ़ते हैं और क्या क्या हैपन करता है और लर्न करते हैं, ठीक है। लर्निंग, साइंस इज नथिंग बट लर्निंग, ठीक है, और नोइंग समथिंग, ठीक है। सो विद दिस आई विल एंड अप टुडेज सेशन। थैंक यू।